بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین اور ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم لوگ داخل ہیں، اور آخری عشرہ رمضان کے تقدس میں انتہائی اضافہ کرنے والا عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کے فضائل میں بیان فرمایا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جہنم سے برات کا پروانہ ملنے والا یہ عشرہ ہے، اور اسی عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی طاق رات میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی عظیم ترین رات رکھی ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ ایسی عظیم ترین رات اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک طاق رات واقع ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں آپ کمر کس کے باندھ لیتے تھے اور عبادت میں اضافہ کر لیتے تھے، اور سخاوت کا دریا آپ کا جوش مارتا تھا، اور آپ شب و روز نہ خود عبادت میں مصروف ہوتے بلکہ اپنے گھر والوں کو سب جگانے کا اہتمام کرتے، عبادت میں مشغول رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک طرف تو یہ سارے فضائل ہیں، اور امت مسلمہ کو چاہیے تھا کہ رمضان کے شروع سے عبادتیں کرتے کرتے نفس کو عبادتوں سے اتنا تعلق ہو جاتا کہ وہ آخری عشرے میں آ کر کے اللہ کے ہو جاتے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ قرار دیا، اور پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اعتکاف کو ناغہ نہیں فرمایا، 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی ساری دنیا سے کٹ کر کے ایک اللہ کا ہو کر رہنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر کے اپنا پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے۔ ایسے آخری عشرے والے زمانے میں جہاں فضائل کی اتنی بھرمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، اور اعتکاف جیسی سنت ہے، اور شب قدر جیسی رات اس آخری عشرے میں ہے، شیطان نے امت مسلمہ کو بجائے اس کے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے، شیطان نے اس کو کمزور کر کے مساجد سے، عبادت سے، گھروں سے باہر نکال لیا، اور امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے کو بازاروں کی زینت بنا لیا۔ سننے میں آیا، لوگوں نے بتایا کہ جو مشہور ترین مارکیٹ ہے، بازار ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا شیواجی نگر مشہور ہے بازاروں میں، وہاں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں، پوری رات افطار سے لے کر کے سحری تک لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہیں، اور بڑی تعداد اس میں مردوں کے مقابلے میں نسبتاً خواتین شمار ہو گیا ہے۔ سڑکوں پہ مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، ایک گناہ نہیں ہو رہے۔ ایک تو راتوں کو گھروں سے نکلنا، بجائے عبادت کے بازاروں کی زینت بننا، خرید و فروخت میں لگنا، پوری رات بازاروں میں گھومتے خریدتے گزارنا، کھاتے پیتے گزارنا۔ اس کے علاوہ مرد و زن کا اختلاط، اور آپس میں ایک دوسرے کے بدن کا ٹکراؤ۔ ایسا بھی سننے میں آیا کہ بہت سارے دیگر مذاہب والے نوجوان لڑکے اسی مقصد سے اس بھیڑ میں حاضر ہو رہے تاکہ اختلاط ہو،
टकराऊ का मौका मिले, गुनाह की लज्जत हासिल करें। पता नहीं उम्मत मुस्लिमा किस रुख पर जा रही है। पूरी रात बाजार में रह करके खा पी करके सहरी के मौके पर घरों में आना और थक हार के सो जाना, फजर की नमाज जो है वो निकल जाना हाथों से। रमज़ान का महीना है, हम लोग, अल्लाह के नबी हमें इस आखिरी अशरे में लगाना कहाँ चाहते थे और हम लग कहाँ रहे। अल्लाह के नबी हमें सारी दुनिया से काट करके अल्लाह के घर में लगाना चाहते थे, एतिकाफ में बिठाना चाहते थे और ख़वातीन को अपने घरों की मस्जिद में बिठाना चाहते थे। लेकिन हम लोग हमारे नबी की मंशा के खिलाफ, इस्लामी तालीमात के खिलाफ, शब-ए क़द्र के फ़ज़ाइल के हुसूल के खिलाफ हम बाज़ारों की ज़ीनत बन रहे हैं। मज़हब इस्लाम बदनाम हो रहा है। क्या हमारी ईद इसका नाम है कि हम नए कपड़े पहने? क्या हमारी ईद का नाम इससे जुड़ा हुआ है कि हम जो है बने सवरे और उसकी तैयारी रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में की जाए, हमारी रातें बाज़ारों में ख़राब हों? नहीं, ये इस उम्मत का अलमिया है। शैतान ने हमें पूरी तरह उचक लिया है, गालिब हो गया, हम मगलूब हो गए, बेबस है, हम शैतान के चुंगल में फंस गए, हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल। जिन लोगों को खरीदारी का शौक है वो पूरी रात ताक रात इबादत के जरिए उसको आबाद और जिंदा रखने की जरूरत थी, हम बाजारों को की रौनक बढ़ाने में लगे। और जिन लोगों को खाने पीने का शौक है वो होटलों के हब में, जहां जहां होटलों का हब है, कोरमंगला है या होस्कोटा है या कहीं और है, लोग खाने पीने के लिए पूरी रात वहां गुजार रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है और रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना हमारे हाथों से निकल रहा है। आप लोगों ने हदीस सुन रखी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मिंबर पर कदम रखने के मौके पर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आमीन कहें। एक बद्दुआ ये थी, हलाक हो आपकी उम्मत का वो मर्द वो औरत जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मगफिरत न करवा ले। अल्लाह के नबी ने इस पर आमीन फरमाई है। मस्जिद नबवी जैसी मुक़द्दस जगह और मेहराब मिंबरों मेहराब जैसी मुक़द्दस जगह, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन फरमाना, इस बद्दुआ की कबूलियत में कोई शुबा है? कोई शुबा नहीं। यकीनी तौर पर अल्लाह के हुक्म से जब बद्दुआ की गई, अल्लाह के हुक्म से जब आमीन कही गई, उसकी कबूलियत में क्या शक है, क्या शुबा है? हम अपनी मगफिरत नहीं करवा लेंगे तो हलाकत में हमारे क्या शुबा है? साल भर हमारा बहुत अच्छा गुजर जाएगा। इसलिए हमारी गुजारिश है माओं से, बहनों से कि वो आखिरी अशरा इबादतों में गुजारें, अपने घरों में गुजारें, मर्द मसाजिद में, और अगर मस्जिद में नहीं तो अपने घर में जितना मुमकिन हो सकता है नमाज, तिलावत, जिक्र, दुआ, तौबा, इस्तिग़फ़ार में गुजार लें और फिर तबीयत थक जाए आराम कर लें। बाजारों की जीनत ना बने, इस्लाम के बदनाम होने का जरिया हम लोग ना बने। और ताक़रातों में हमारे नौजवान बच्चे जो अभी दहलीज, जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले बच्चे, अपनी सवारियां लेकर के व्हीलिंग बड़ी बड़ी सड़कों पे किया करते, पुलिस चौकन्ना है। खुसूसन 27वीं शब को ये बहुत ज्यादा होता है कि लोग, नौजवान बच्चे जो है वो व्हीलिंग करते हैं और पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता जमानत ना हुई, बेल ना हुई तो सारे घराने की ईद की खुशियां चौपट हो जाती हैं। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी मेराज के बाबरकत सफ़र के बाद हमने ये सुना, हमारे नबी ने फरमाया कि जहन्नम में जलने वालों की तादाद में औरतों को मर्द के मुकाबले में ज्यादा देखा, उनकी तादाद जहन्नम में जलने वालों की ज्यादातर ख़वातीन की। तो बात समझ में
आ नहीं रही थी। हालात अब समझा रहे हैं कि बाजारों में मर्दों के मुकाबले में खवातीन है। इसलिए हमारी गुजारिश है तमाम बरादरान इस्लाम से, अपने तमाम भाइयों से, अपनी तमाम बहनों से कि वो खुदारा मजहब की बदनामी का सबब ना बने और अपनी हलाकत को दावत ना दे, मुसीबत न मोल ले, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारे। ये मार्केटिंग कभी भी हो सकती है, ये खरीदारी कभी भी हो सकती है। रमजान खत्म हो रहा है, वो लौट के नहीं आएगा, 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। पता नहीं जिंदगी वफा करेगी नहीं करेगी, रमजान मिलेगा नहीं मिलेगा, हम किस रुख पर जा रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को समझने की तौफीक अता फरमाए, अपने एक एक लम्हे को कीमती जानते हुए इबादत में, मस्जिद में मर्द और ख़वातीन अपने घरों में इबादतों में गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रमज़ान को हमारी बख्शिश के लिए अल्लाह बेहतरीन ज़रिया बनाए और बाज़ारों की ज़ीनत बनने से हमारी बिलखुसूस ख़वातीन की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।